Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is combination of resistors. So, there are three kind of combinations. First, in series. So, first one is series combination, second parallel, and the third one both series and parallel connection. So, इन सीरीज कनेक्शन की अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करूँ तो this series connection is made up of three resistors and three resistors are in series are connected with one battery and further it is connected with one key switch. So this is R1, R2 and R3. So three resistors are here. So now this is our positive terminal, this is negative terminal. Always remember, my friends, in series connection, whenever we take series connection, there are there may be two or more than two number of series or number of resistance are there in this series connection, and if current is flowing through circuit, current will be constant, but one component which is not constant throughout this circuit and that is voltage. So यहाँ पर अगर ये हमारा A point है, after that this is B, this is C and this is D point. So voltage across this A, B, C, D are different from each other. So यहाँ पर current एक single है, current formula is I, but voltages are different. So here first I am starting from the potential difference between two. So positive terminal resistance is always greater in potential difference. So A का potential सबसे maximum होगा और D का potential सबसे minimum होगा. Why? Because D is here connected with negative terminal. तो जो भी पॉजिटिव के साथ होगा उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा. So starting from VA minus VB, that is our first voltage potential difference V1. After that VB minus VC, that we call it as V2. After that VC minus V A B B C D, yes, is equal to V3. So तीन वोल्टेज आ गए, 1 2 3, तीन रेजिस्टेंस के तीन पोटेंशियल डिफरेंसेस. ओके, सो यहाँ पे हमें इस प्रकार से वोल्टेजेस मिले. अब क्या करना है कि टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑल वोल्टेजेस. तो रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम करो, राइट हैंड साइड वालों का सम करो, और वो जो जितना भी वोल्टेज आएगा वो हमारी पूरी सर्किट का पूरा वोल्टेज होगा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड वाले का अगर मैं सम करूंगा तो वी कैंसल, वी सी कैंसल. नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली वी ए माइनस वी डी. So VA minus VD is equal to V1 plus V2 plus V3, and these three sum of voltage is nothing but our total voltage, total potential of our circuit. So simple. अब इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है. This is our total voltage. So total voltage में से total current flow होगा according to Ohm's law. I into R S, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो मैंने यहाँ पर आर एस लिख लिया. सो V इज इक्वल टू आई आर एस इज इक्वल टू V1. करंट आई फ्लो हो रहा है R1 में से, सो आई हैव टू राइट हियर आई आर वन, हियर आई आर टू, एंड फॉर V3 आई आर थ्री. कॉमन टर्म इज आई विल बी कैंसल आउट. सो आई एम लेफ्ट विथ आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, वेन एवर देर इज अ सीरीज कनेक्शन, हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस को सिंपली समेशन करवा देना है. तो सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. ओके, अब सपोज के मेरे पास दो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी R1 प्लस R2. नाउ इज फॉर एग्जांपल माय R1 इज 3 ओम, R2 is 4 ohm and R3 that is 5. तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आवर सर्किट 3 plus 4 plus 5 कितना होगा 12 ohm. सो
12 ओम इज द राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए कि पहला फर्स्ट कि जो भी करंट होगा इट इज कांस्टेंट और करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा, यस ओनली वन वे, देयर इज नो अदर वे। और सेकेंड फैक्टर V इज वेरीइंग हियर, कैसे मैंने वो पहले बताया था कि कैसे वो चेंज होता है। ओके, so now we are moving on to our next classification, that is in parallel. So now our resistances are in parallel, so here parallel resistance को मैं draw कर देता हूँ। Okay, so this is our parallel connection. Parallel connection is also okay joined with one battery and here one is key. So this is our R1, this is R2, this is R3, positive negative. Okay, so here remember my friends, current is flowing through, total current is I. But in this circuit, after reaching current here, current will be divided in three parts, क्योंकि करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतना ही करंट ज्यादा डिवाइड होगा। सो हियर दिस वन इज I1, दिस वन इज I2 एंड दिस वन इज I3। ओके, सो करंट यहाँ पर चेंज हुआ। सो कौन सा ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट रह रहा है? सो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। सो यहाँ पर अगेन अगर मैं यहाँ पर ए नाम दे देता हूँ, दिस वन इज बी। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ आवर सर्किट। सो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस करंट फॉर्मूला, सिंपल। तो करंट फॉर्मूला से स्टार्ट करें तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आफ्टर दैट नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम लॉ को यहाँ पर रखें तो उसकी फॉर्मूला थी V अपॉन आर। पैरेलल है इसीलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ऑलवेज रिमेंबर V इज कांस्टेंट in parallel connection, so V will be cancelled out. Now we are left with 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। so जब कभी भी पैरेलल कनेक्शन होगा और हमें पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, so just we have to sum of reciprocals of resistances, so ऐसे हमें मिल जाएगा। ओके, अब दूसरी बात कि यहाँ पर इफ दे हैव गिवन वैल्यूज टू अस, तो अब वैल्यू अगर दी है कि R1 इज इक्वल टू 2, R2 इज इक्वल टू 1 एंड R3 इज इक्वल टू 3, सो बाय पुटिंग हियर RP हमें मिल जाएगा 6/5, सिंपल एज दैट। So 6/5 ohm is our answer। तो अब दोनों सर्किट्स में सपोज के ये जो जितने भी रेजिस्टेंसेस है अगर वो सब सेम होते, मतलब कि R1 इज इक्वल टू आर, R2 इज इक्वल टू आर, R3 इज इक्वल टू आर, सो हियर माय आंसर विल बी, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर RS इज इक्वल टू, तीनों R सेम है तो R प्लस R 3R हो जाएंगे। सो अगर इस फॉर्मूला का मैं जनरलाइज करूं कि जब कभी भी रेजिस्टेंसेस आर सेम, all resistances are same and they are in series, so I must have to write that equation n into capital R, because if we have n number of resistances in our circuit, so simply one value of one resistance into the number of resistance which we are putting in that circuit, so we get equivalent resistance here. So this is our final equation of series circuit। now पैरेलल के लिए, तो पैरेलल में भी मैं अगर दो फैक्टर की बात करूं, सो हियर V इज कांस्टेंट एंड I इज वेरिंग, I चेंज हो रहा है, सो थोड़ा उल्टा है। और यहाँ पर इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज करूं
तो फिर क्या होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R, फिर से 1/R। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है सो माई आंसर विल बी 3/R। सो RP इज इक्वल टू R/3। सो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ, सो मेरे पास अगर 10 होंगे तो R/10 करना है, अगर 15 है तो R/15 करना है, बट अगर n है तो R/n करना है। सो दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला ऑफ parallel connection. Okay, now let us we move on the both type of connection, parallel as well as series. तो both type of connection में हमें जब कभी भी दोनों टाइप के कनेक्शन होंगे तो कितने भी रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो दोनों कनेक्शन एक साथ होगा। तो दोनों कनेक्शन अगर एक साथ होगा तो क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो तब हमें पहले जितने पैरेलल कनेक्शन है उसको काउंटिंग करना है, उसको कैलकुलेट करना है। जब सारे पैरेलल कनेक्शन का कैलकुलेशन ख़त्म हो जाए बाद में सीरीज से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम लोग पैरेलल का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तब वो सीरीज के साथ आ जाएगा और फिर सीरीज को इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल कि सपोज कि मेरे पास दो पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर दिखाया है उस प्रकार, और एक सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये है 2, 3 और दिस वन इज 5। तो देखो 2 and 3 आर पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि वहां से जो करंट है उनको दो रास्ते मिल रहे हैं, सो दे आर इन पैरेलल। सो पैरेलल कनेक्शन में फाइंड करने के लिए देखो सिंपल, अगर दो रेजिस्टेंस है तो रेसिप्रोकल ऑफ देम टू 1/2 प्लस 1/3। उसका डायरेक्ट मेथड अगर मैं समझाऊँ आपको, सो डायरेक्ट मेथड इज मल्टीप्लीकेशन अपॉन समेशन। डायरेक्ट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा इन पैरेलल, बट ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ही लिमिट है। सो 2 into 3 6/5। सो अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर इट इज 6/5 ओम। अब मैं फिर से यहाँ पर इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि हमें और इजी रहे। सो 6/5 हियर इट इज 5। अब दोनों सीरीज में होंगे तो हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है। अब इसका आंसर तो 6 + 25/5 31/5। so this is our final answer. So final equivalent resistance value is 31/5 ohm. So that's our topic guys, combination of resistor. That's it for today. Thank you so much for viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.